Right at the top, we have some big breaking news coming in. This comes in the aftermath of the NDLS stampede. The Railways has reviewed their rules on passengers at platforms, and they're taking steps to avoid any further stampede-like situations at stations. Now, only confirmed ticket holders will be allowed on platforms. Passengers with reserved tickets will also be able to access platforms. Waitlisted passengers will need to remain outside of the station. The Railways is also going to build a waiting area outside of stations. The waiting areas are going to be built outside of 60 stations across the country. All unauthorized entry points will be sealed. Earlier, 18 people had died in the NDLS stampede. Now, remember, essentially there were massive crowds. There were also major lapses that were found at the New Delhi railway station once the investigation had proceeded into how exactly there was such a massive stampede. Remember, there were special trains that were organized for the Mahakumbh in Prayagraj, which is now over, of course. It ended on the 26th of February itself. But considering that there are millions from across the nation and across the world itself who attend the Mahakumbh Mela, there was massive crowding at the New Delhi railway station, which had led to a stampede when there were different announcements made for special trains. Now, as per the lapses that have also come to light, there was a lack of CCTV footage because there was a lack of CCTVs that were even in these spots. Now, because of this, there has been action that's been taken by the railways at this point. We'll give you the crux once more, where only confirmed ticket holders are going to be allowed on platforms, and passengers with reserved tickets are going to be access platforms as well. But those who are waitlisted will now be waiting outside. We're crossing over to my colleague Bhavna to bring us more on this. Bhavna ji, हम railways का decision के बारे में बात कर रहे हैं. आप key takeaways दे सकते हैं? और बिल्कुल, जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पे भीड़ भाड़ त्योहारों के समय पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसको देखते हुए कल रेल मंत्री ने एक बैठक की और कई बड़े फैसले किए गए हैं कि 60 स्टेशन, देश भर के जो 60 स्टेशन है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वहां पर एक वेटिंग एरिया बनाया जाएगा और ये वेटिंग एरिया स्टेशनों के बाहर होगा, ताकि जो यात्रियों की ट्रेन होगी उसके कुछ देर पहले ही उन्हें एंट्री दिया जाएगा, ताकि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा ना हो। इसी तरह से वेटिंग टिकट वालों की एंट्री अब नहीं हो पाएगी, जिसकी भी कंफर्म टिकट है वही अंदर जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह के फैसले जो है इस बैठक में लिए गए हैं। हालांकि कैमरे जो है, सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने की बात भी कही गई है कि स्टेशनों पे कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए, वॉर रूम्स बनाए जाएंगे, बड़े स्टेशनों पर विकसित किए जाएंगे, क्योंकि जरूरी है कि वहां से मॉनिटरिंग लगातार की जाए। अगर स्टेशन पर भीड़ जो है वो नियंत्रण में नहीं होती है तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इसी तरह से नए डिजाइन के आईडी कार्ड बनाए जाएंगे और रेलवे स्टाफ के लिए नई डिजाइन की यूनिफॉर्म तैयार की जाएगी। टिकटों की बिक्री की जो क्षमता है उसके अनुसार ही टिकट जो है वो बांटे जाएंगे। तो कुछ इस तरह के फैसले खासतौर पे क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए किए गए हैं और ये बैठक कल हुई है। कल अश्विनी वैष्णव ने तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक की और कुछ ऐसे फैसले किए गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से अभी होली का त्योहार है तो वहां पर बहुत भीड़ भाड़ होगी स्टेशनों पर। इसको देखते हुए वेटिंग एरिया जो है वो बनाने जो है वो शुरू हो चुके हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, आनंद विहार रेलवे स्टेशन हो, जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, वहां पर वेटिंग एरिया बना दिए गए हैं। और इसी तरह से अगर बात करें तो बनारस हो, अयोध्या हो, पटना हो, कुछ ऐसे जो बड़े स्टेशन है और ऐसी कुछ जगह है जहां पे धार्मिक स्थान है, जहां पे लोगों की संख्या लाखों में अब हो गई है, क्योंकि पहले अयोध्या पहुंचने वालों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती थी। कुछ सालों अगर बात करें राम मंदिर बनने के बाद ये संख्या काफी बड़ी है। बनारस जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए स्टेशनों पर क्राउड मैनेज करने के लिए वॉर रूम तैयार किए जाएंगे, वेटिंग एरिया तैयार किया जाएगा, सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसके साथ ही जो कर्मचारी है उनके लिए नई यूनिफॉर्म डिजाइन किए जा रहे हैं। जी भावना जी, आप बता सकते हैं कि कोई इम्प्लीमेंटेशन का टाइमलाइन भी दिए गए हैं? All right, we'll connect at a later point in time to get you more details about when exactly these measures are going to be implemented now that they've been announced. But right now, we'll be shifting focus.